Hi everyone, welcome you all to my channel. Today we are going to start a new chapter, that is the molecular basis of inheritance, and in this we will learn about structure of polynucleotide today. Okay, so you know that RNA and DNA, okay, RNA is ribonucleic acid whereas DNA is deoxyribonucleic acid. So these are the nucleic acids, also called polynucleotides. So we will see the structure of DNA in this video, right? So first we will focus on the history of it. You know, Frederick Miescher has observed some genetic material in the pus cells. ठीक है, ये pus cells हैं. He has observed some genetic material which is transferring from one cell to another cell, and he has given the name nuclein to it. Okay, he has given the name nuclein to it in the year 1868. Okay, तो पहले जो रिपोर्ट किया था न्यूक्लिन वो किसने किया है? फ्रेडरिक मिस्चर ने. बट लेटर ऑन द टर्म न्यूक्लिन इज चेंज्ड. नाउ इट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड एंड द नेम इज चेंज्ड बाय आर अल्टमान इन 1889. ठीक है, अल्टमान ने इसका नाम चेंज कर दिया और क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो ये थी इसकी हिस्ट्री. Then move ahead to the location of it. So here we will see that where is this nucleic acid present. ठीक है, or we can say where is the DNA present. कहाँ present होता है? अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, suppose this is the bacterial cell. ये बैक्टीरिया की एक सेल है. In the cell you will observe a naked DNA in the cytoplasm. ठीक है, बैक्टीरियल सेल में जो DNA होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है and this DNA is circular in shape. So this is the DNA of the prokaryotes, right? But if you observe a eukaryotic cell of an animal or plant, suppose this is a plant cell in which certain organelles are there, plastids, chloroplast, and mitochondria. Certain organelles are also present in this. So what you will observe here that the DNA is present in the eukaryotes in the nucleus. So DNA is present inside the nucleus. So this is a nuclear DNA. ये nuclear DNA है. ठीक है, ये single strand, not single stranded. This is a double stranded DNA, and this is thread-like structure in this. Whereas these organelles also contain their own DNA, and it is circular in shape. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना DNA होता है. So that DNA is also circular in shape, right? So this DNA is called extra chromosomal DNA, or it is also known as organelle DNA. ठीक है, क्योंकि ये organelles में present है, right? If you talk about the genetic material, so the main genetic material is the DNA. DNA is the genetic material in most of the organism. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है. बट इन सम केसेस यू विल सी दैट आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लाइक इन सर्टेन वायरसेस इज एड्स और इन एचआईवी. ठीक है, इसमें आप देखिए, नॉट एचआईवी, टीएमवी, इसमें आप देखिए कि आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, सो इन सर्टेन केसेस आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. Now move on to the topic, that is the chemical composition of a polynucleotide chain. So as I said that DNA is a polynucleotide, but we can say DNA is the polymer. ठीक है, polymer क्या होता है? Polymer is made up of monomers, means many small units. Okay, so you have heard about proteins. Proteins are made up of many amino acids. ठीक है, an amino acid chain will make what? Protein. So these are the monomers. ठीक है, ये सब monomers है, and they make a chain that is known as the polymer. तो DNA भी है, क्या है? Polymer है. DNA किसका polymer है? DNA is the polymer of nucleotides. Okay guys, DNA is the polymer of nucleotides. So nucleotide क्या है? Monomer हो गया. ठीक है, अब बहुत सारे nucleotide मिलके ये nucleotide है, this is another nucleotide, this is another. Okay, like this many nucleotides gets attached to each other, and then they will make a polynucleotide.
न्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है, they will make a polynucleotide chain. Poly means many nucleotide. Okay guys, so what DNA is? What DNA is a polymer of a nucleotide chain. Is it clear? Now we will see that what does this nucleotide contains. न्यूक्लियोटाइड किस किस का बना होता है? और न्यूक्लियोटाइड contains phosphate group, a sugar can be ribose in case of RNA, and it can be deoxyribose in case of DNA. ठीक है, RNA के केस में राइबोस शुगर होती है, whereas DNA के केस में deoxyribose शुगर होती है. Third thing which nucleotide contain is the nitrogenous base. Okay, third thing जो होती है न्यूक्लियोटाइड में होती है नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस कैन बी प्यूरिन्स एंड pyrimidines. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड pyrimidines. प्यूरिन्स में है एडेनिन एंड ग्वानिन. How you will remember these purines? So remember purines for pure as gold. Okay, P से purine, A से adenine, G से gold. Pure as gold. Pyrimidine are 3: cytosine, then thymine and uracil. Cytosine is present in DNA and RNA both. Thymine is present in DNA. And uracil is present in RNA only. Okay, ये क्लियर है? साइटोसिन दोनों में होता है, थायमिन डीएनए में ही होगा, यूरेसिल आरएनए में होगा. मींस थायमिन आरएनए में नहीं है और यूरेसिल डीएनए में नहीं है. ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं कट से. सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिल, टी से थायमिन. तो CUT, रिमेंबर द टर्म कट. ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्यूरिन्स एंड pyrimidines में? प्यूरिन्स आर मेड अप ऑफ 2 रिंग्स. प्यूरिन्स के अंदर 2 रिंग होती हैं और pyrimidines के अंदर सिंगल रिंग इज देयर. ठीक है, ये क्लियर है? प्यूरिन्स के अंदर 2 रिंग है, pyrimidines के अंदर सिंगल रिंग है. नाइट्रोजनस बेस ही क्यों बोलते हैं, एसिड नहीं क्यों नहीं बोलते? द रीजन इज दैट दे कंटेन नाइट्रोजन. इनमें नाइट्रोजन होती है, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस. होप इट इज क्लियर टू यू. न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, sugar can be ribose or deoxyribose. Ribose in case of RNA में राइबोस शुगर होगी और DNA में deoxyribose होगी. And it also contain nitrogenous bases. ठीक है, now move on to the difference between nucleotide and nucleoside. तो न्यूक्लियोसाइड में हमें क्या साइड करना है? फॉस्फेट साइड में कर देना है. मींस इसमें फॉस्फेट नहीं होगा, तो क्या होगा? इसमें शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेसेस होंगे. So it contains bases and sugar only. What you have to cite here? Phosphate. Phosphate is not present in nucleoside, right? Now let's see this table over here. So as I told, the nucleotide contain phosphate, okay, then sugar, and these are the nitrogenous bases, purines and pyrimidines. ठीक है, phosphate हो गया, ये phosphate है, ये phosphoric acid है. तो जब phosphate attach होता है sugar से, तो all the hydrogen get removed. ठीक है, ये हाइड्रोजन हट जाते हैं और ये इससे बॉन्डिंग कर लेता है. आई एम टॉकिंग ऑफ डीएनए टुडे, सो वी विल सी द बॉन्डिंग विद डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइट? ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द शुगर. शुगर कैन बी राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस. ठीक है, डीऑक्सीराइबोस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने देखा इस पोजीशन पे, दैट इज अ 2' OH group is present, but here at the 2' only H is there, means oxygen is removed, that's why it is known as deoxy. ऑक्सीजन हट जाता है. ठीक है, यहाँ पे OH है, 3' एंड पे क्या है? OH. ओके, अब बात करते हैं प्यूरिन्स की. एज आई सेड 2 चेन होती है. 1 चेन इज हियर, दिस इज द सेकंड चेन. और इसमें नंबर करेंगे तो आप देखेंगे 9 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर्स हैं इसमें? 9 मेंबर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? Whereas in case of pyrimidine we have 6 members. 1 2 3 4 5 6, only 6 members. ठीक है, इतना क्लियर है? प्यूरिन्स में 9 मेंबर्स हैं, pyrimidines में 6 मेंबर हैं. बेसिस जो होते हैं दे गेट्स अटैच टू द शुगर एट द फर्स्ट' पोजीशन. अब इसको हम फर्स्ट' इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वी हैव रिटन द नंबर ओवर हियर. सो
to don't to be confused in this, so we have written prime over here and not prime here. We will write 1 2 3 in this purines and 1 prime 2 prime 3 prime 4 prime in the sugar. ठीक है, नंबरिंग इसलिए की गई है ऐसे कि इससे कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, कौन से 1 प्राइम का कौन सा कार्बन है। ठीक है, 1 प्राइम का कार्बन से हो रही है, 2 प्राइम की से हो रही है शुगर के। फॉर दिस वी हैव रिटन प्राइम ओवर हियर। तो जो भी प्यूरिन्स बेसिस होते हैं वो 1 प्राइम एंड से जुड़ेंगे। ठीक है, 1 प्राइम एंड यहां से जुड़ेंगे शुगर के। फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट जो होगा वो कहां जुड़ेगा, अच्छा वी आर टॉकिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोस सो आई विल मेंशन हियर। तो यहाँ पे जुड़ेंगे बेसिस, और यहाँ पे जो 5th पोजीशन का कार्बन है, यहाँ पे दिस कार्बन, हियर वी विल सी द अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट, राइट। तो 5 प्राइम फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, बेसिस 1 प्राइम पे, फॉस्फेट 5 प्राइम पे। नाउ जब प्यूरिन्स अटैच हो रहे हैं शुगर से, तो प्यूरिन्स अपनी 9th पोजीशन से अटैच होंगे। ठीक है, प्यूरिन्स जब अटैच होंगे तो वो उनकी 9th पोजीशन होगी। अगर pyrimidine अटैच हो रहे हैं तो उसकी 1st पोजीशन होगी। ठीक है, रिमेंबर मैक्सिमम पोजीशन इनकी होगी 9th और मिनिमम पोजीशन दैट इज 1 नंबर। They will attach from 1 number nitrogen to the sugar. This purines will attach at the 9 number nitrogen with the sugar. Okay, again I am repeating. जो फॉस्फेट है वो तो 5 प्राइम पर अटैच होता है, बेसिस अटैच होते हैं 1 प्राइम पे। बट बेसिस का कौन से नंबर से वो अटैच हो रहे हैं, प्यूरिन है तो वो 9th नंबर से अटैच होंगे, और इसका शुगर का तो 1st ही है। ठीक है, और प्रिमिडिन्स है तो वो 1st नंबर से अटैच होंगे। 1st नंबर का जो नाइट्रोजन है ये यहां से। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। अगर हम फॉस्फेट हटा दें इससे तो क्या बन जाएगा, वो न्यूक्लियोसाइड। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल सी हियर how the bonding takes place and what are all the bonds present in the nucleoside and the nucleotide. Okay, so first we will see, we will make a nucleoside here. न्यूक्लियोसाइड है तो क्या हमें हटाना होगा, फॉस्फेट हटा देना है, यानी कि शुगर है और क्या है, बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज दिस इज द 1st प्राइम, 2nd प्राइम, 3rd प्राइम, 4th प्राइम और 5th प्राइम पोजीशन। ठीक है जी, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, अभी नहीं अटैच कर रहे हैं फॉस्फेट, वी आर टॉकिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे अटैच हो जाएंगे बेसिस। सपोज मैंने यहाँ पे एक बेस अटैच कर दिया टी, थायमिन। ठीक है, थायमिन अटैच हो गया, कौन सी पोजीशन पे, 1st। अब थायमिन क्या है, थायमिन क्या है, थायमिन इज द pyrimidine। तो थायमिन कौन सी पोजीशन से अटैच होगा, अपनी 1st पोजीशन से। 1st पोजीशन ऑफ pyrimidine दैट इज थायमिन इज अटैच टू द 1st पोजीशन ऑफ द शुगर, 1 प्राइम पोजीशन। ठीक है, प्राइम बोलेंगे इसे। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड राइट नाउ। ओके, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि बेस और शुगर के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वाई ग्लाइकोसाइडिस, ग्लाइको मीन शुगर, क्योंकि ग्लाइको का मतलब ही होता है शुगर। किससे जुड़ रहा है, शुगर से जुड़ रहा है बेस, तो एन इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई नाइट्रोजन जुड़ रही है, बेस की नाइट्रोजन जुड़ रही है ना, दैट्स व्हाई इट इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस इज द बॉन्ड बिटवीन बेस and the sugar is the N-glycosidic bond. Remember? Okay, now we will attach a phosphate over here. अब मैंने यहाँ पे phosphate जोड़ दिया। ठीक है, now what it is? It is a nucleotide. ये nucleotide बन गया। अब the bonding between this phosphate and the carbon of that is the 5th position carbon, यहाँ पे जो कार्बन था, this bond जो phosphate और इस sugar के कार्बन के बीच में बना है, that bonding is phosphoester bonding. Phosphoester bonding, not diester. This is phosphoester bonding. ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, तो फॉस्फेट और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग हुई यहाँ पे वो हो गई फॉस्फोएस्टर बॉन्डिंग। ठीक है, नाउ ये 5 प्राइम पोजीशन है, रिमेंबर दिस। नाउ आई एम गोइंग टू मेक वन मोर शुगर ओवर हियर। ठीक है, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हम बना लेते हैं, यहाँ पे A1C बेस है। ठीक है, अब जो यहाँ पे फॉस्फेट है, देखिए ये जो है 5 प्राइम पोजीशन का कार्बन था, यहाँ पे फॉस्फेट जो लग गया। ठीक है, ये फॉस्फेट था,
दिस फॉस्फेट विल अटैच टू दिस न्यूक्लियोटाइड एट अ 3 प्राइम पोजीशन। ये इसकी फॉस्फेट की 5 प्राइम पोजीशन है और यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, 3 प्राइम पोजीशन ऑफ कार्बन, राइट। सो यू कैन सी दिस बॉन्डिंग विच इज कनेक्टिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो अटैचमेंट हो रहा है फॉस्फेट की वजह से, वो जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है और इसकी जो पोलैरिटी है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखिए ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, तो पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की जो पोलैरिटी है दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए। अब हम एक और अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फॉस्फेट है यहाँ पे 3 प्राइम एंड से ये जुड़ गया, ये 5 प्राइम पोजीशन थी। सो यू कैन सी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दिस इज द बेस। बेस कौन से बॉन्ड से अटैच हुआ है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके गाइस, सो इन दिस वे द न्यूक्लियोटाइड्स गेट अटैच वन बाय वन एंड दे विल मेक अ polynucleotide chain. So in the RNA there is only one polynucleotide chain, whereas in DNA there are 2 polynucleotide chains. Okay, so this is DNA chemical composition. You can see the polarity of one strand is 5 prime to 3 prime. ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पे 5 प्राइम बनाई थी मैंने आपने देखा कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप क्या है, फ्री है। तो एक एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और दूसरे एंड पे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है जो कि 3 प्राइम पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर से हम दिखा देते हैं। देखिए ये 3 प्राइम पोजीशन थी, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो दिस इज फ्री ओवर हियर, सो दिस इज द 3 प्राइम एंड, क्योंकि यहाँ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड कह सकते हो आप, और वी कैन से 5 प्राइम फॉस्फेट एंड। So what is the polarity of DNA? 5 prime to 3 prime. Okay guys. And now if we talk about the another strand of DNA, then you can see the polarity is changed. ठीक है, उसकी polarity change हो जाएगी। T के साथ क्या join करेगा, A always pair with T and G always pair with C. A और T के बीच में जो बॉन्डिंग है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब C के संग हमेशा G पेयर करता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ATGC ये सीक्वेंस याद रखिए। A always pair with T, G always pair with C. AT has 2 bond, GC has 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड, बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, होप इट इज क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, 3 प्राइम 4 प्राइम। ओके, 1 2 3 4 एंड देयर इज अ 5th कार्बन ओवर हियर। यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक चेन बन जाएगी जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। Okay, so you can see over here this is the polarity 3 prime to 5 prime, means यहाँ पे hydroxyl group free है and at the other end we will see phosphate group is free. So remember this, that phosphodiester bond की जो polarity है that is 3 prime to 5 prime, DNA polarity is 5 prime to 3 prime. Okay, all the bonds are clear. phosphodiester bond किसके बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जो जोड़ रहा है फॉस्फेट, उसके बीच में जो बॉन्ड है वो phosphodiester बॉन्ड है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है बेस शुगर और बेस के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 2 बेस के बीच में। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। दोनों के नॉमेनक्लेचर मींस कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम न्यूक्लियोसाइड बना के देखते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड है, शुगर एंड अ बेस, तो बेस लगा लिया एडेनिन। ठीक है, और दूसरा बना लेते हैं, उसमें बेस अटैच करते हैं ग्वानिन, थर्ड साइटोसिन और फोर्थ थायमिन। ठीक है, एडेनिन अगर अटैच है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, बेस एंड शुगर 2 चीजें हैं, फॉस्फेट नहीं है। एडेनिन अटैच है तो वी कॉल इट एडेनोसिन।
इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए में अगर ये है तो हम एडेनोसिन बोलेंगे, और डीएनए में अगर होगा ये तो डीऑक्सी एडेनोसिन। और डीएनए में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, OH नहीं होगा, H होगा। ठीक है, आरएनए में क्या होगा, यहाँ पे OH होगा, है ना। ओके गाइस, एंड इफ G इज देयर देन वी कॉल इट अ गुआनोसिन। क्या 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 ऐड हो रहा है एंड में, I and E। ओके, सफिक्स क्या है, I and E। न्यूक्लियोसाइड के केस में I and E। C ऐड होगा तो सेटिडिन, थायमिन होगा तो डीऑक्सी THY MIDIN थायमिडिन, डीऑक्सीथायमिडिन। ठीक है, यहाँ पे साइटिडिन तो हो गया आरएनए के केस में, डीऑक्सी लगा दीजिए आप इसके आगे तो डीऑक्सी साइटिडिन हो गया डीएनए केस में, गुआनोसिन हो गया आरएनए के केस में, और डीऑक्सी अगर ऐड कर देंगे प्रीफिक्स में तो डीएनए के केस में हो गया डीऑक्सी गुआनोसिन। भाई थायमिडिन तो आरएनए में होता ही नहीं है तो डीऑक्सी थायमिडिन ही याद रखना है, थायमिडिन याद करने की जरूरत नहीं है। यूरिडिन, यूरेसिल, ये आरएनए केस में होगा यूरिडिन। ओके, न्यूक्लियोटाइड में क्या ऐड करना है, LATE। ठीक है, तो सफिक्स LATE ऐड हो जाएगा। अगर एडेनिन है, बेस एडेनिन है, पहले तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बताइए, शुगर बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तभी तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अगर एडेनिन है देन वी कॉल इट एडिनाइलेट इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सी एडिनाइलेट इन केस ऑफ डीएनए, ग्वाइनालेट इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सी ग्वाइनालेट इन केस ऑफ डीएनए। साइटोसिन होगा तो साइटिडाइलेट और डीऑक्सी साइटिडाइलेट, थायमिन में डीऑक्सी थायमिडाइलेट। ओके, ये याद नहीं करना। यूरेसिल यूरिडाइलेट। ओके, लेट ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है जी, ये हो गया नॉमेनक्लेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बेस पेयर्स। देखिए, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। ओके, अब यहां हम बात कर रहे हैं बेसिस की। इसके बीच की जो दूरी है वो है 2 नैनोमीटर। अब इस 2 नैनोमीटर में A और T आ सकते हैं पेयरिंग में, और G और C आ सकते हैं। A G नहीं आ सकते और T C भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, यू नो A क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2 रिंग होती है ना A और G की, एडेनिन और गुआनिन की 2 रिंग होती है, थायमिन और साइटोसिन की सिंगल रिंग होती है। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि 2 रिंग का 1 रिंग के साथ स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे आ रहा है तो वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा इस गैपिंग में, जस्ट 2 नैनोमीटर वाली में। ठीक है, अगर ये दोनों T और C आ गए यहाँ पे, अगर T और C आ जाएंगे तो दे आर नॉट एबल टू फिल दिस गैप। अगर ये वाली रिंग आ गई A और G वाली डबल रिंग वाली तो दे विल मूव बिहाइंड दिस, वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो व्हाट इज पॉसिबल, बेस पेयरिंग कैसे हो सकती है भाई, A T के साथ पेयर कर सकता है, G C के साथ, यानी कि डबल रिंग होनी चाहिए, एक की सिंगल रिंग होनी चाहिए। अब A की पेयरिंग हमेशा T के साथ ही होगी, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना सकता है T के साथ। G की पेयरिंग हमेशा C के साथ होगी बिकॉज इट कैन मेक ट्रिपल बॉन्ड विद C ओनली। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बेस पेयरिंग A T G C। अगर आपको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, सपोज A T G A T C, हाँ ठीक है, एक सीक्वेंस ये बेस पेयरिंग है, नॉट बेसिस है ये, तो दूसरे स्ट्रैंड के आप पता लगा सकते हैं। जैसे A के साथ क्या होगा, A के साथ T होगा, T के साथ A, G के साथ C, A के साथ T, A के साथ T, T के साथ A एंड C के साथ G। तो like this you can find out the pairs of the another strand, bases of the another strand. Okay, so this is the complementary of base pairing. Hope it is clear to you. Now move on to the next slide. Here we will see the anti-parallel direction. Okay, इसके लिए हम पिछली वाली स्लाइड पर जाते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था एक जो स्ट्रैंड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है इसकी, उसका जो पोलैरिटी है दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दूसरे स्ट्रैंड के 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो दीज बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड यू कैन सी द पोलैरिटी इज अपोजिट। ठीक है,
पोलैरिटी एक की 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरे के 3 प्राइम से 5 प्राइम। 5 प्राइम मीन्स यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और 3 प्राइम मीन्स यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। और दूसरे वाले स्ट्रैंड में देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बैकबोन की। ये जो बैकबोन है, दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। ठीक है जी। एंड जो बीच में सेंटर में इनसाइड जो जा रहे हैं वो क्या है, हमारे बेसिस है। दीज आर द बेसिस इन द सेंटर। ओके गाइस, लाइक दिस द बैकबोन इज मेड अप ऑफ sugar and phosphate. Okay, so backbone is made of sugar and phosphate, whereas nitrogenous bases projects inside. ठीक है, so this is all about today's video. Hope you like this lecture. Thank you guys for watching it.